Hello and welcome everyone. So from today I'm going to start a new series that is of ancient Indian history. So this lecture is going to be an introductory lecture in which I'll discuss some basics, history of human evolution and chronology of ancient Indian history. So ancient Indian history को directly pre-history से start करने से पहले it is important कि हम ये चीज़ें discuss करें so that हमारी understanding better हो सके subject को लेके. Okay? तो चलिए start करते हैं आज के lecture से. ओके सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन. सो इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी से अक्वायर की गई नॉलेज अबाउट द ह्यूमन पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री. So we can say that history is a systematic study and documentation of human past. Alright, now we'll see the classification of Indian history. Indian history is classified into ancient Indian history, medieval Indian history and modern Indian history. Ancient Indian history का time period है from earliest times, that is from Stone Age till 7th century AD. Medieval Indian history का time period है from 8th century AD to 18th century AD. अगर हम ज़्यादा प्रिसाइजली बात करें तो 712 AD से लेके 1707 AD तक. 712 AD में इंडिया में होती है फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन बाय द अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम एंड 1707 AD में होती है औरंगजेब की डेथ और उसके बाद स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन. राइट, सो दिस टाइम पीरियड इज रेफर्ड एज मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री. एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड है फ्रॉम 18th century AD ऑनवर्ड्स टिल इंडियन इंडिपेंडेंस. राइट, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. नाउ जो colonial historians और British historians थे, they classified Indian history on the basis of religion. According to them, this time period represents Hindu period. This time period represents Islamic period and this time period represents British period. But according to the nationalist historians, this reasoning is not correct as throughout Indian history we see coexistence of different religions and different kingdoms that follow different religions. For example, during ancient Indian history, we see that along with Hinduism, Buddhism and Jainism also flourishes. During medieval Indian history, we see that along with Mughals, there were Rajputs, Sikh Empire, Maratha Empire and South Indian kingdoms, right? So we cannot classify Indian history on the basis of religion only, alright? So according to the nationalist historians, this time period of ancient Indian history, there was political unity in India, especially in the northern India. And during this time period, we see large-scale political fragmentation in India and emergence of various kingdoms, right? And during this time period, we see stronghold of Britishers, especially after the Battle of Plassey in 1757 and Battle of Buxar in 1764. Also, Indians got introduced to Western philosophy and modern ideas. So this is how we classify Indian history. Okay, so इनका time period important है. So do remember their time periods, right? Next, we will discuss the concept of BC, AD, BCE and CE. So according to the Gregorian calendar, timeline is divided on the basis of birth of Jesus Christ. So reference के लिए Christ के birth वाले year को मान लेते हैं year 0. And Christ के birth के बाद वाले years के साथ use होता है AD, which is Anno Domini, which means in the year of the Lord. Right? So after year 0, there will be year 1, 2, 3, 100, 200, 300 and today we are in 2024 AD. एंड क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले ईयर्स के साथ यूज होता है BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. सो 100 BC, 200 BC, 300 BC. सो BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. ओके, सो 300 BC से पहले आएगा 400 BC, 500 BC, 1000 BC, 5000 BC, 50,000 BC, 5 लाख BC. राइट, तो इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, सो AD एनो डोमिनी एंड BC बिफोर क्राइस्ट. नाउ ये दोनों टर्म्स जो है ये रिलीजियस कॉनोटेशन के टर्म्स हैं. इन्हें नॉन रिलीजियस कॉनोटेशन देने के लिए, सेकुलर कॉनोटेशन देने के लिए अब जो टर्म्स यूज होती है दीज आर BCE एंड CE. सो BCE मीन्स बिफोर कॉमन ईरा एंड नाउ दिस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ BC and CE is common era, okay, and this is now used in place of AD, right? So this is the concept of timeline. अब सेंचुरी का concept देख लेते हैं. तो सेंचुरी represents a period of 100 years. So if I say 8th century, so it means 701 से लेके 800 तक का period. If I say 15th century, it means 1401 से लेके 1500 तक का period. And today we are in 21st century, so it means 2001 से लेके 2100 तक का period, right? So this is all about the basics. Next, we will study the history of human evolution, and this discussion is mainly for the major understanding, right? So first of all, what is the age of Earth?
or when did the earth originated? So earth originated around 4.5 billion years ago or 4500 million years ago. एंड अब इसके बाद अर्थ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व कर रही हैं, दैट ऑल इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी. हियर वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. ओके, सो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद आते हैं मैमल्स अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो. एंड मैमल्स में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आते हैं अर्ली ह्यूमंस अराउंड 4.5 to 4.4 मिलियन ईयर्स अगो. राइट, सो अब अर्ली ह्यूमंस की एवोल्यूशन देखते हैं. First of all, early humans were found in eastern and southern Africa. So this point is important. Early humans कहाँ मिलते हैं सबसे पहले? Eastern and southern Africa में, and that is why we say Africa is the cradle of humankind, right? And the first species of early humans is Ardipithecus ramidus, which were found 4.4 million years ago. MYA means million years ago. So these Ardipithecus ramidus were the first hominians to walk on legs. So they were the first one to walk on legs, but वो हमेशा वॉक नहीं करते थे. Sometimes they walk on legs, right? Next one is Australopithecus afarensis, which were found 3.7 to 3 million years ago. And these species were completely bipedal. That is, they always walked on legs, right? So unlike Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis were completely bipedal and they always walked on legs. And they have ape-like and human-like traits. इनका ब्रेन साइज स्मॉल था एंड उनकी फोसिल्स इथोपिया में मिलते हैं. इससे हमें प्रिसाइज रीजन पता लग जाता है कि अर्ली ह्यूमंस कहाँ मिलते थे, इन इथोपिया, राइट. नेक्स्ट इज दी होमो हैबिलस. होमो हैबिलस वर फाउंड 2.5 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो एंड इन्हें हैंडी मैन और वर्किंग मैन भी कहते हैं बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टूल्स एंड देयर फोसिल्स वर फाउंड इन केन्या एंड तंजानिया. ओके, next is the Homo erectus. These were found 1.9 million to 0.14 million years ago, and these were the first species who migrated long distances to Europe and Asia. Also, they were the first one to start the use of fire, but in a controlled manner. So the first species who started controlled use of fire were the Homo erectus, and the first one who migrated long distances were the Homo erectus. इसके बाद आ जाते हैं होमो सेपियंस. दीज वर फाउंड 0.3 मिलियन ईयर्स अगो और 3 लाख ईयर्स अगो. इन्हें वाइज मैन भी कहा जाता है एंड साइंटिस्ट इन्हें आर्काइक होमो सेपियंस भी कहते हैं. एंड सब सिमिलर स्पीशीज दैट आर फाउंड इन अदर रीजन्स आर होमो निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस. जो होमो निएंडरथल्स हैं ये मिलते हैं निएंडर वैली ऑफ जर्मनी में एंड इनका टाइम पीरियड है 4 लाख BC से 40,000 BC तक का. नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डेनिसोवंस, एंड उसका एक ऑप्शन था अर्ली ह्यूमन स्पीशीज. ओके, सो नाउ यू नो डेनिसोवंस इज द अर्ली ह्यूमन स्पीशीज. नेक्स्ट वन इज होमो सेपियंस सेपियंस. दीज वर फाउंड 1,60,000 ईयर्स अगो एंड दीज कंप्लीटली रिप्रेजेंट द मॉडर्न मैन, राइट. इनका ब्रेन साइज बिग था एंड दीज ऑल्सो माइग्रेटेड लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक द होमो इरेक्टस, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. सो हमने जो ये सारी डिस्कशन की है दिस इज मेजरली फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड अगर अब इसके ऊपर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. सो नाउ वी विल डिस्कस द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दीज आर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड है वेयर देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड्स. कोई भी लिखित रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज पीपल ऑफ दैट टाइम do not know the art of writing. That is why no written records are available. Archaeological remains are the only historical sources. Archaeological excavation से जो evidences मिलते हैं उन्हीं से ही हमें जानकारी मिलती है इस पीरियड की, right? So prehistory is that period where there is no written records and archaeological remains are the only historical sources. Now prehistory में आती हैं stone ages and these are Paleolithic age which is old stone age. And its time period is 2 million BC to 10,000 BC. Next one is Mesolithic age, that is Middle Stone Age, and its time period is 10,000 BC to 4,000 BC. Third one is Neolithic age, that is New Stone Age, and its time period is 7,000 BC to 1,000 BC. And the fourth one is Chalcolithic age, which is Copper Stone Age, and its time period is 4,000 BC to 1,000 or 700 BC. नाउ अब यहाँ आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, जो ये टाइम पीरियड्स हैं ये डिफरेंट सोर्सेज में आपको डिफरेंट मिलेंगे, इसलिए आपको इनका अंदाज़ा रखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट तरीके से नहीं देखना.
एक अंदाजा रखिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान ये वाली एज है, इस टाइम पीरियड के दौरान ये वाली एज है, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट इज जो ये प्री हिस्ट्री की एजेस है, ऐसा नहीं है इनमें कि एक एज के कंप्लीटली खत्म हो जाने के बाद सेकेंड एज आएगी, उसके कंप्लीटली खत्म हो जाने के बाद थर्ड एज आएगी, ऐसा नहीं है। ये पैरेलली को एग्जिस्ट करती है, ओवरलैप करती है। इंडिया में एक ही टाइम पीरियड में आप देखेंगे एक रीजन में मेसोलिथिक साइट्स मिलेंगी, एक रीजन में न्यूलिथिक साइट्स मिलेंगी, एक रीजन में चाल्कोलिथिक साइट्स मिलेंगी, राइट। तो इस अंडरस्टैंडिंग से आपको ये टॉपिक समझना है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री का वो पीरियड है वेयर वी सी अनडिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के पास रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल है, बट अभी उन्होंने उसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया है, अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो हमें इस पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से और किसी और सिविलाइजेशन के रिटन रिकॉर्ड से। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की रिटन रिकॉर्ड से, ओके। सो प्रोटो हिस्ट्री में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंज एज। तो इंडस वैली के लोग यूज करते थे ब्रोंज। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर वो लेते थे चाल्कोलिथिक साइट से एंड टिन वो लेते थे अफगानिस्तान वाले एरिया से, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 3300 BC टू 1300 BC, फ्रॉम प्री हरप्पन स्टेज टू लेट हरप्पन स्टेज। एंड इसका मेच्योर फेस है फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC, राइट। सो दिस इज अबाउट दी प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट स्टार्ट होती है एक्चुअल हिस्ट्री, जहां आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ प्रॉपर लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं। एंड ये स्टार्ट होती है वैदिक एज से। सो वैदिक एज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ था ऋग्वेदा। लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 BC टू 1000 BC। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 BC टू 6000 BC। एंड लेटर वैदिक पीरियड के दौरान आयरन का भी यूज स्टार्ट हो गया था एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन एज, राइट। इसके बाद आते हैं महाजनपद्स। सो देयर वर टोटल 16 महाजनपद्स एंड इनका टाइम पीरियड है 600 BC से 300 BC तक का। आउट ऑफ दो 16 महाजनपद्स मगधा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मगधा में हम देखते हैं हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी, राइट। एंड इसी टाइम पीरियड के दौरान हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को भी डिस्कस करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड है 321 BC टू 200 BC। एंड मौर्यन एम्पायर के 3 मेन किंग्स वर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। मौर्यन एम्पायर के बाद आते हैं पोस्ट मौर्यन किंगडम्स। इनका टाइम पीरियड है 200 BC टू 300 AD। इनमें हम डिस्कस करते हैं शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी एंड सम फॉरेन इन्वेजन्स, फॉर एग्जांपल बाय इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशानास, राइट। इसके बाद आते हैं गुप्ता किंगडम। गुप्ता किंगडम का टाइम पीरियड है 300 AD टू 600 AD। एंड जो 5 मेन गुप्ता किंग्स हैं दे वर चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता, राइट। After Guptas, we see political fragmentation in India and emergence of various kingdoms. So we study them in post-Guptas, that is 600 AD onwards, right? So this is all about the chronology of ancient Indian history. So आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए some basics, history of human evolution and chronology of ancient Indian history. आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा प्री हिस्ट्री पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज, राइट। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।